हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बार फिर से बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जो है सबसे पहले जो है आपको क्या पता है, डू यू नो आईआरसीटीसी प्रोसेस 14 लाख ट्रेन टिकट्स डेली एंड रन्स एपिक टूर्स लाइक द श्री रामायण यात्रा। Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss. IRCTC is a monopoly railway ticket business, but recently some fare hikes and pantry complaints were sparked the debates. In next 15 minutes, we will show you how the stock could be a gem, starting with what they do and what their business pipelines are. So IRCTC is backbone of Indian Railways and a monopoly business that include railway ticketing, handling, foods, tourism, and water. So they have a four segments. Internet ticketing contribute 50% of revenues, which is through their website, their mobile app. They do a 14 lakh tickets daily. This is called internet ticketing, earning high profit margins because it is all online with a low cost. Catering business contributed to 35%. They serve food on the trains and at stations, like doing a e-catering, which they serves the meal at their seat. This is the second biggest revenue generation segment. Tourism, again the 10% of contribution which do. They offer tourism packages like a 17 days Shri Ramayan Yatra covering 30 plus holy sites using a special Bharat Gaurav trains. Rail needs contribute 5% of their revenue, which is a package mineral water. So IRCTC जो है they catered a volume ticket contract and tourism packages like is the future revenue growth segment. In financial year 2025, they processed 51 crore tickets, up 9%, and signed a catering contract for 1200 plus trains. Tourism packages like the 5th Shri Ramayan Yatra launches in July 2025 are fully booked with a more planned. This pipeline ensures the steady cash flow, though the delay in new tech could slow the growth. Why IRCTC is thriving? Let's check. Indian railway and tourism sectors are growing very fast, and IRCTC is a heart of it. Indian Railways carries 2.5 crores passenger dailies with $24 billion travel market growing 10 years yearly. Spiritual tourism boosted by Ayodhya Ram Temple drives demand for the IRCTC tour. Governments spent rupees 2.4 lakh crores railway budget supports the modernization. Their monopoly in online ticket and railway access give them an unbeatable advantage. Why the IRCTC has a very good growth plans. IRCTC target 10% growth in financial year 2025 with tourism aiming for 50% by new ticketing like a Shri Ramayana Yatra. They are launching a unidentified traveling app by December 2025 handling 1.5 lakh booking per minute. Plans to double rail near plant in Bihar and Maharashtra and build 30 to 35 budget hotels with 600 crores of investment. Financial year 2025 revenue hit all time with 47,000 crores, up 9.5% with Q4 net profit beating estimate by 7.1%. Growth looks solid. But what are the market risks? In July 2025, the fare hikes 1 by 2 paisa per kilometer and Aadhaar-based ticketing sparked user complaints and rising backlash. Pantry contract issues like overcharging lead to 3% stock drop in June 2025. Also, competition from the private train and apps like Make My Trip could eat into a margin. Stock down 27.67% in past year, hitting 52 week low of 656. Now looks at their fundamentals numbers. The company is very big and they are monopoly business. Their current price is 781, whereas the high was 5059 and the low was 656. तो लो से जो हम थोड़ा सा रिकवर कर चुके हैं. स्टॉक का पी जो है वो 48.8 है, समवेयर अराउंड 49 के आसपास. इंडस्ट्री का पीई 35 है, तो इंडस्ट्री के पीई से ऊपर के ट्रेड कर रहा है. बुक वैल्यू 45 रुपीज की है. करंट वैल्यू जो है 781 की है. वहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 365 के आसपास की है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू से जस्ट डबल के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है. इंडस्ट्री का पीई जो है 35 है. इंडस्ट्री के पीई से डिफरेंट 38.8% ये महंगा है. पैग रेशियो 2.48 है, तो थोड़ा सा जो है पैग रेशियो के हिसाब से अगर आप जो देखोगे तो ग्रोथ और पैग रेशियो को डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा महंगा है. 1 से ऊपर जो है हम जनरली जो है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते. ये 2 से ऊपर है तो ये जो है गुड की कैटेगरी में भी आ जाएगा, मतलब कि सो की कैटेगरी में आ जाएगा. फ्री कैश जो है 787 करोड़ का है. ऑल टाइम हाई से जो है वो 39% जो है हमें गिरा हुआ भी मिल रहा है. प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 17.1 की है और इंडस्ट्रियल प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 4.37 की है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो फंडामेंटल्स जो हमें सो लग रहे हैं, यहीं पर ही जो है अगर हम इसकी जर्नी देखें मैक्सिमम की, तो इसने जो अपना जो टॉप जो बनाया था वो 2021 में बनाया था. उसके बाद में उस टॉप के पास में जो है ये अभी तक वहां पे भी नहीं गया. लास्ट में जो है वही 2021 के टॉप से जो है वो डाउन में आ गया. ठीक है, अगर वहीं पर ही जो है
सॉरी, तो पीई का जो है 10 ईयर्स का अगर मैं चार्ट खोलूं तो इसका जो मीडियन जो आ रहा है वो आ रहा है 66 और अभी जो है वो 50 के आसपास में है। लाइक वाइज जो है अगर मैं इसी को जो है अगर मैं 5 साल से देखूं तो भी जो है मीडियन से हमें डाउन में मिल रहा है, और 3 साल से अगर मैं कंपेयर करूं तभी भी मीडियन से हमें डाउन है। वहीं पर ही अगर मैं इसको प्राइस टू बुक देखूं तो 3 साल, 5 साल और 10 साल तीनों में ही जो है मुझे प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में भी जो है अपने मीडियन से जो है ये डाउन को देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं जो है इसको पी या पीवी रेशियो से कंपेयर करूं इसके खुद के प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, तो हमें जो है ये एक बेटर लेवल में देखने को मिल रहा है। प्रॉज ये है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है, कंपनी ने जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ करा हुआ है 20% CAGR का लास्ट 5 ईयर्स में, कंपनी ने जो है गुड रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दिया है 40% का, और कंपनी का जो डिविडेंड भी जो है वो भी काफी हेल्दी है। कॉन्स में यह है कि कंपनी जो है वो 17.1 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि हाई वैल्यूएशन है अगर आप सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू को देखोगे, लेकिन इसके हिस्टोरिकल वैल्यू से कंपेयर करोगे तो वो फेयरली वैल्यूड है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी डिक्रीज हुई है लास्ट 3 ईयर्स में -5% से। वहीं पर ही जो है अगर हम इसके पीयर्स से अगर हम इसको कंपेयर करें तो IRCTC के जो है, वैसे तो ये मोनोपोली बिजनेस है, कोई भी इसका क्लोज पीयर्स नहीं है, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा हम डीप जो है वो नहीं जाएंगे, हम जो है इसमें आगे की मूव ऑन कर लेते हैं। सेल्स अगर मैं देखूं तो सेल्स जो है लास्ट अगर मैं क्वार्टर में देखूं तो मार्च 2025 में जो है ये 9% से बढ़ा था, दिसंबर में जो है वो भी 9% से ग्रो करा है, सितंबर में 7% से, जून जो है उसमें 2024 में 11% से, और मार्च 2024 में 20% से ग्रोथ इसकी कंटिन्यूसली जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज जो है हमें इसके प्रॉफिट में भी जो है अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ जो है अभी जो है लास्ट अगर मैं 4 क्वार्टर की बात करूं तो 18, 10, 4 और 13% के हिसाब से ग्रोथ हुई है, तो एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स अगर मैं ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेल्स में भी जो है अगर मैं लास्ट 4 साल की अगर मैं बात करूं तो 10% लास्ट ईयर, उससे पहले 20%, 2023 में 88% और 2022 में जो है 141% से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ जो है वो काफी हैंडसम ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। ये जो ग्रोथ जो है ये काफी अच्छा ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से आप अगर यूरोप में, चाइना में देखेंगे हाई स्पीड ट्रेन वगैरह बन रहे हैं, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी जो है आगे मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे होएगा वहां पे जो है हाई ट्रेन्स वगैरह जो है वो आएंगी, और ये जो है बेनिफिट जो है IRCTC को डेफिनेटली मिलेगा। मोनोपोली बिजनेस का जो है ये बेनिफिट रहता ही है, जिस तरीके से GDP बढ़ती है, जिस तरीके से कंट्री ग्रो करता है, इसी तरीके से जो है अपना IRCTC भी ग्रो करेगा। अगर वहीं पर ही जो है हम सेल्स ग्रोथ जो है अगर हम देखें तो 10 साल का 16% है, 5 साल का 16% है, 3 साल का 36% है, और 12 ट्रेलिंग मंथ का 9% है। लाइक वाइज वहीं पर ही प्राइस जो है लास्ट 3 सालों में जो है मात्र 10% से बढ़ा है, और एक साल में जो है -24% से जो है वो घटा है। तो यहाँ पे जो है एक वैल्यूएशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 साल, 5 साल, 3 साल में जो है 36, 37, 40 और 37% का है, तो आप मान के चलो कि 36 to 40% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है। लास्ट ईयर में जो है इसने 37% का दिया है। वहीं पर ही जो है इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, रिजर्व इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स जो है इसके कुछ कुछ हैं लेकिन बहुत ही कम बोरोइंग्स में ये काम कर रहा है। ठीक है, CWIP भी जो है इसने जो है लास्ट ईयर जो है 27 करोड़ का था, उससे पहले 443 करोड़ का था, तो यहाँ पे जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इनके जो है टोटल एसेट्स जो है ये देखिए आप कंटिन्यूसली ये ग्रो कर रहा है। वहीं पर ही जो है अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बेहतरीन है, वो जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, और कैश में जो है ये कहीं पे भी जो है इसमें दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद में जो है इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी जो है काफी बेहतरीन है। डेटर डेज जो है वो भी इंप्रूव्ड है, नहीं डेटर डेज जो है वो थोड़ा सा 117 डेज से 135 डेज में गया है। इन्वेंट्री डेज कम हुई है, डेज पेबल जो है वो भी कम हुए हैं। कैश कन्वर्सेशन साइकिल इसका हमेशा से नेगेटिव है, और ROC तो इसका बेहतरीन है ही। तो शेयर पैटर्न अगर हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है 67% की जो होती थी वो घट के जो है 62.40 हुआ है। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये कंज्यूम किसने करा है। तो FII की होल्डिंग जो 2022 में 5.87 की थी वो जो है बढ़ के 7.37 की हो चुकी है, और वहीं पर ही DII की जो होल्डिंग 5.3% की थी वो बढ़ के जो है 13.89 की हो चुकी है। यहाँ पे जो है इन दोनों ने जो है अपने जो है रिटेल से और प्रमोटर से जो है इन्होंने बाय करा हुआ है। वहीं पर ही पब्लिक का जो 21.42% का जो रेशियो रहता था वो कंटिन्यूसली घट के अभी जो है 16.35 के आसपास में आ चुका है। वहीं पर ही जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, फोन कॉल्स में आप डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा, ये जो है आपके कन्विक्शन को बिल्डअप करने में जो है वो हेल्प करता है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल की तरफ। तो ये जो है IRCTC का मैंने वीकली चार्ट आपके सामने रखा है। वीकली चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो ये जो है इसकी मूवमेंट जो है, ये जो एक लाइन जो है जो कि 2020 फरवरी से जो है ये कंटिन्यूसली बना के चल रहा है। वहीं पर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में एक अच्छी मूवमेंट, फिर उसके बाद में वहीं पर रिट्रेसमेंट, वहीं पर रिट्रेसमेंट, और अभी फिर से रिट्रेसमेंट करके यहाँ से जो है एक मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोप जो था इसने यहाँ पे एक एग्जिट दिया हुआ, हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बना के चले या यहीं से ऊपर चलना चालू हो जाए, ये भी कोई भी एग्जैक्ट जो है ये नहीं बता सकता। अब जो लास्ट में अगर इसके चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो 2021 में जो है इसने जो है हाईएस्ट बनाया था। तो 2021 का अगर मैं चार्ट खोलूं तो यहाँ पे 7,777 करोड़ का बिजनेस था। अब जो है ये
बिजनेस जो है 4675 करोड़ का हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है 6 टाइम्स बिजनेस बढ़ चुका है। वहीं पर ही जो नेट प्रॉफिट इसका जो था, जो कि 187 करोड़ के आसपास का जो होता था, वो भी करीबन करीबन 6 टाइम्स के, आपको 6-7 टाइम्स के आसपास में जो है 1315 करोड़ का जो है इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। और हमें जो है ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करने को मिल रहा है, जो उसने जो हाई बनाया था 2021 में, उस लेवल से भी जो है हम करीबन 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 जो है 30% डाउन के आसपास में, 30-40% डाउन के आसपास में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको ये जो दिख रहा है, तो ये जो है काफी बेहतरीन लेवल पे जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ऊपर से जो है गिरावट जो है काफी अच्छी इसमें हो चुकी है, सेल्स और इसके जो प्रॉफिट जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से जो है हमें बढ़े हुए देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये जो है यहाँ से अगर आपको ऑल टाइम हाई तक की भी जो है अगर आपको जर्नी ये करके देता है, तो ये आप मान के चलो कि ऑल टाइम हाई तक भी जो है आपका 61% का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है आने वाले 3 से 5 साल में जो है ये डेवलपमेंट डेफिनेटली हो सकती है। स्टॉक अच्छा है, मोनोपोली स्टॉक है, तो आप जो है इसमें जो है अपना कन्विक्शन बिल्डअप करिए और आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है हम इस तरीके के कंपनीज में जो है एक लॉन्ग टर्म होल्ड करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है हम अपनी जर्नी को लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीक आपको जो है इसी तरीके से ऐसी कंपनीज में डीप एनालिसिस करके जो है एक नए स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जो है मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जो है मेरी वीडियोस को जो है रिकमेंड करिए, उनको देखने के लिए बोलिए और हम साथ में जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है हम साथ में काम करें, इसके लिए जो है हम आप जो है सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय।